سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2018 میں RTS کی ناکامی کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے دوران RTS کی ناکامی پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین نادرا، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور نادرا کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیئرمین نادرا نے انتخابات 2018 کے دوران RTS کے استعمال پر بریفنگ دی، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے RTS کی ناکامی کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ اجلاس میں نادرا اور الیکشن کمیشن کے مابین نیک شناختی کارڈ کے حامل افراد کے قوائف کے اجراء کے معاہدے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن حکام نے الیکشنز ایکٹ 2017 کی دفعہ 25 کے تحت نئے شناختی کارڈز کے حامل افراد کا ڈیٹا مہیا کرنے کے لیے نادرا کو ادائیگی نہ کرنے کی تجویز دی، جس پر چیئرمین نادرا کا کہنا تھا کہ نادرا نہ صرف نئے شناختی کارڈز کے قوائف الیکشن کمیشن کو مہیا کرتا ہے بلکہ تکنیکی طور پر اپنی خدمات بھی مہیا کرتا ہے۔ نادرا ایک خود انحصار ادارہ ہے جس کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہوتی۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ نادرا حکام اور الیکشن کمیشن حکام کا موقف سن لیا ہے، معاملے پر علیحدہ میٹنگ کر کے خود فیصلہ کیا جائے گا۔ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 30 سال اپنی جوانی پیپلز پارٹی کو دی۔ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی بات کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آتی تھی، مگر آج صوبائی تعصب کی بو آ رہی ہے۔ اب کوئی سندھ کارڈ نہیں، صرف پاکستان کارڈ چلے گا۔ ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا تو اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے ہم پر تانا زنی کی گئی۔ جب ترقی یافتہ ممالک کی معیشت اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پاکستان کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ جو صوبے کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے، بساتھ احترام یہ درست نہیں ہے۔ بہتری کی گنجائش ہو سکتی ہے، آپ بہتری کا مطالبہ کریں، ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے بہتری کے لیے۔ حکومت پاکستان نے، وفاق کی حکومت نے مشاورت کے ساتھ ایز کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا، غلط ہے۔ ایز کے مشورے میں ساری صوبائی حکومتوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ آمادگی کے بعد یہ ایز ڈاؤن کا پروسیس آگے شروع کیا گیا۔ جناب والا، میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تعصب درست نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری ایبڈیکیٹ کر دی ہے۔ نو سر، we have not abdicated our responsibility. We are aware of our responsibility, but the decisions we are taking are ڈیٹا بیسڈ۔ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے۔ واٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن؟ لوگوں نے اس کا تمسخرے اڑائے، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن۔ اور نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے شاہ محمود قریشی کی تقریر کو تعصب پر مبنی قرار دے دیا۔ کہا سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ وفاقی حکومت شروع دن سے ہی ابہام کا شکار ہے۔ لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ یورپ کی مثال نہ دیں کیونکہ ہمارے ہاں ابھی پیک آنی ہے، وہاں صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ کرونا بڑھ رہا ہے اور ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں۔ صحت کا شعبہ بحران کا شکار ہے، PMDC کو غیر فعال کر دیا گیا۔ واضح طور پر بتائیں کہ 18ویں ترمیم سے کیا مسئلہ ہے۔ صوبائی خود مختاری بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے پاس وہ پورٹ فولیو ہے، ایک میٹنگ میں آئے، ویڈیو کے اوپر خطاب کیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ باقی تمام وہاں پہ لیڈران جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، تمام پارٹیز کے۔ جناب والا، آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ 2-2.5 مہینے کی جو غفلت ہے اس کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ورسٹ نے ابھی آنا ہے۔ وزیر خارجہ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے، یہ سیاست ہم کر لیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے، مراد علی شاہ کی یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ کو پروٹیکٹ کریں، اور اس سلسلے میں وہ ہر قدم اٹھا رہے ہیں۔ کراچی سب سے بڑا شہر ہے ہمارے ملک کا، لیکن پھر بھی وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے۔ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے، کوئی ایسی بات کریں جو ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، ہم جیسے نان پڑھ لوگوں کی۔ یا یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ یہ بیچ میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن اور دوسری لاک ڈاؤن کی جو اختراع نکالی جا رہی ہے، اس سے کوئی پڑے گا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सूबे कोरोना की वबा से अकेले नहीं लड़ सकते, विफाक को मदद करना होगी। सूबाई तासुब ना फैलाएं, आएं सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। हुकूमत सेहत के शोबे में नाकाम हो गई, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को सहूलियात नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा हेल्थ वर्कर्स की शरह सबसे ज़्यादा है। मुल्क मुश्किल में है, सियासत का वक्त नहीं, हम अब भी सियासत नहीं करेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, आज भी नेशनल असम्बली सेशन में मौजूद नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वज़ीर आज़म को, हुकूमत को दिल से ये पैगाम दिया था कि जो हमारे सियासी इश्यूज़ होंगे, जो हमारे सियासी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे, वो हम साइड पे रखें और मिलके इस वबा का मुकाबला करें। आपने जो तकरीर किया है, जो बातें किए हैं, वो हक़ाइक़ बिन मबनी नहीं है। अगर आप समझते हो कि हम सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं या सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग कर रहे हैं, आप हमें बता दें। हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो भी आपके CBMs होंगे मानने को तैयार है। हमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। अगर हमें मदद चाहिए, अगर हमें आपका साथ चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे आवाम का जान और सेहत खतरा में है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो इन मरीज से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, हमने ना सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, हमने इमरजेंसी रूम्स में भी अपने डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हमने जो नर्सेज, जो पैरामेडिक्स इस वक्त में, इस पैंडेमिक के दौरान अपने जानों के साथ खेल रहे हैं, अपने खानदान को खतरा में डाल रहे हैं, सिर्फ अपना काम, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। कौम की रहनुमाई के दावेदारों ने कौमी असम्बली में तमाम SOPs की धज्जियां उड़ा दी। डिप्टी स्पीकर की भी एक ना सुनी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा अहम इजलास से गायब रहे। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी डर कर घर से ही ना निकले। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी सेहत के मसाइल की वजह से इजलास में शरीक ना हुए। अरकान असम्बली ने कोरोना से बचाव के लिए SOPs की धज्जियां उड़ा दी। अमजद नियाजी, अली मीन गंडापुर और शेख रुहेल असगर समेत दीगर अरकान बगैर मास्क लगाए, ग्लव्स पहने इजलास में शरीक हुए। किसी ने डिप्टी स्पीकर की भी एक ना सुनी। तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें और फासले के साथ बैठें और तमाम एहतियाती तदाबीर को बरवेकार लाएं। PTI के इमरान खटक और कई खवातीन अरकान ने कासिम सूरी की बात पर कान न धरे, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने वार्निंग देते हुए कहा कि यहाँ कचहरी लगाने की जरूरत नहीं, मजलिस करनी है तो ऐवान से बाहर जाएं। इमरान खटक साहब, आपने यहाँ पे कचहरी लगाई हुई है, सबने चारों ने। ये इजलास में अगर आपने मजलिस करनी है तो बाहर चले जाए, वरना अंदर गौर से सुने। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक इतने अहम मौके पर ऐवान से गैर हाजिर रहे। विफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार और साहबजादा महबूब सुल्तान भी कहीं नजर न आए, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेहत के मसाइल और खुर्शीद शाह नैब हिरासत की वजह से इजलास में शरीक न हो सके। दूसरों को घरों तक महदूद रहने का ताना देने वाले विफाकी वजीर फवाद चौधरी इस अहम मौके पर डर कर घर में बैठ गए। ट्विटर पैगाम में कहा कि इजलास बुलाकर मुल्क की सियासी क़यादत को गैर जरूरी खतरे में डाल दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करके फवाद चौधरी ने अपनी ही हुकूमत के लॉकडाउन खत्म करने के फैसले पर अदम एतमाद कर दिया। यूं महसूस होता है कि फवाद चौधरी ही वो शराफिया है जिसकी तरफ वजीर आजम बार बार इशारा करते हैं, क्योंकि अपोजिशन के तो तमाम अहम रहनुमा इजलास में शरीक हुए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेर सदारत वजारत तालीम में होने वाला इजलास ख़त्म हो गया है। तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। वफाकी वज़ीर का ट्वीट पैगाम में कहना है कि तमाम बोर्ड इम्तहानात मनसूख हैं, इसमें कोई अबहम नहीं। 80% तलबा को कोई एतराज़ नहीं। वजारत तालीम ने तमाम बोर्ड से सिफारिशात तलब कर ली हैं। बोर्ड से सिफारिशात देने के लिए वक्त मांग लिया। जुमे तक तमाम अमूर पर एक जामे प्लान का ऐलान किया जाएगा। कोरोना कैसे फैलता है, इसकी एक मिसाल लाहौर में देखी गई, जहां पीको रोड पर वाक़े नादरा सेंटर के बाहर कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर दी गईं। नादरा सेंटर के बाहर लोगों का रश रहा, समाजी फासले का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। रिजवान नकवी की रिपोर्ट इसी बारे में है।
लाहौर में पीको रोड पर वाक़ नादरा सेंटर में लोगों का आज रश लगा रहा। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद न हो सका। नादरा पीको रोड सेंटर में बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए साइलिन की लंबी कतारें लगी रही। धक्कम-पेल भी देखने में आई। नादरा ऑफिस आने वालों में कोरोना मुतासरीन की इमदादी रकम से महरूम रहने वाली खवातीन भी शामिल हैं। खातून का कहना था कि इमदादी रकम मरहूम शोहर के नाम पर आ गई। डेथ सर्टिफिकेट दिखाया लेकिन रकम न मिली। मेरे नाम दे पैसे आए ते ओ डेथ हो गई तो ना कह भई ओ जिचू करा लिया दफ्तर दे मिलने। साइलिन का कहना है कि नादरा सेंटर की कतारों में कोरोना फैलाव के खदशे के बावजूद हालत रोजा में सुबह सवेरे ही पहुंच जाते हैं। सातों तो खलोता भी नहीं जाता, पहले उत्थे जाके खलो रहे हैं, हुण इत्थे खलो रहे हैं, कोई साथ ही नहीं बुढ़िया बंदियां दा। सारा दिन कतार में लगने के बावजूद इस बात का यकीन नहीं होता कि काम हो जाएगा। तालीमी साल के पेश नज़र ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने 15 जून से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया और विफाक की जानिब से बंद रखने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। साथ ही साथ स्कूल और कॉलेज के लिए SOP जारी कर दिए हैं। कराची से मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज तालीमी इदारे बंद रखने से मुतालिक वफाकी हुकूमत का ऐलान मुस्तरद करते हुए 15 जून से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन की तरफ से जारी किए जाने वाले SOPs के मुताबिक तालीमी इदारों के दाखिली रास्तों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और वॉक थ्रू गेट का इंतजाम किया जाएगा। स्कूल के तालीमी औकात कम करके हफ्ते में 3 छुट्टियां देने की तजवीज दी गई है। स्कूलों को 2 शिफ्टों में खोलने के लिए कहा गया है। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात मंसूख न किए जाएं, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 1 से 15 जुलाई तक और 11वीं और 12वीं के इम्तहानात 20 जुलाई से 20 अगस्त तक लेने की तजवीज दी गई है। एसोसिएशन की जानिब से इम्तहानी मराकज़ में इजाफा, तलबा और तालिबात की तादाद में कमी की भी तजवीज दी गई है। वानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। अपडेट करेंगे आपको। पाक ईरान मुश्तरका सरहद मीर जावा और ताफ्तान 2 माह बाद खोल दी गई है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सरहद हफ्ते में 3 दिन तजारती सरगर्मियों के लिए खुला करेगी। ये 3 दिन कौन से होंगे, ज़िशान भट्टी से जानेंगे। ज़िशान भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस के बाद जो पाक ईरान सरहद है वो मार्च में बंद कर दी गई थी और आज ईरान की जानिब से ऐलान किया गया कि ये हफ्ते में 3 दिन ये सरहद अब खोली जाएगी। हफ्ते के दिन पीर और बुध के दिन सुबह 8 से 2 बजे तक ये तजारती सरगर्मियों के लिए सरहद को खोला जाएगा, जबकि जो ईरान में ट्रक फंसे हुए थे वो अब पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे, जबकि इब्तदाई तौर पर 75 ट्रक हैं वो आएंगे और इसके अलावा 600 से ज्यादा ट्रक वहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद थे जो बंदिश की वजह से वहाँ से सामान नहीं मुंतकिल कर सके थे। अब ये सरहद खुलने के बाद जो है वो ट्रक पाकिस्तान आएंगे। ठीक है ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। और कौन होगा इन और कौन होगा आउट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कबल इस वक्त ऐलान खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कर रहे हैं। कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हम अनाउंस कर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं पहले आप कर रहे हैं 1 जुलाई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे, तो पहले क्यों आप अनाउंस कर रहे हैं। देखिए लास्ट ईयर भी और उसको पहले भी हमारी प्लानिंग की इशू होती थी कि हम अर्ली प्लानिंग नहीं करते एज ए PCB। सो ये हम पूरा कल्चर हम चेंज कर रहे हैं, तो प्लेयर्स को भी हम सिक्योरिटी हम दे रहे हैं पहले बताकर। तो मिसबा कल वो सबमिट करेगा अपने लिस्ट को, तो आखिर में चेयरमैन साहब के पास हम लिस्ट ले जाएंगे, तो वो आखिर में वो साइन ऑफ करेंगे। कैटेगरीज तो हम 3 ही देखेंगे, A, B और C जैसे लास्ट ईयर। सो उसके पहले आई थिंक 2018-19 सीज़न में 33 प्लेयर्स थे और 31, और लास्ट ईयर 19 प्लेयर्स थे हमारे। तो इसी पैरामीटर्स तो 19-20 में चलेंगे हम इंशाल्लाह। ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेफिनेटली इनके पैसे नीचे नहीं जाएंगे, और हम ये भी कोशिश करें थोड़ा इंक्रीमेंटल इनको भी हम दे दें, क्योंकि हमें NOC पॉलिसी भी चेंज की है, लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स में ये इशू आ जाएगा कि इनको अब मौका नहीं मिलेगा T20s खेलने के लिए दूसरे मुल्कों में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर दियामिर भाषा डैम की तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से फौरी तौर पर दियामिर भाषा डैम की तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत की गई है। आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पानी के ज़खायर को महफूज बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस बताएगा इस सिलसिले में क्या हिदायत जारी हुई हैं। नेशनल वाटर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और डैमों की तामीर से मुतल्लिक जो आज अहम इजलास हुआ है, इसमें चेयरमैन वाबडा ने खुलकर जो है
जो प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ रही हैं उनको दियामिर बादशाह, मेमंद और दीगर जो डेमो पर उन पर उन्होंने बात की है। जो फाइनेंस के इश्यूज आ रहे थे वो तमाम सर आज डिस्कस हुए हैं, जिसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हदायत की है कि फौरी तौर पर जो है वो डैम शुरू किए जाएं। दियामिर बादशाह डैम के हवाले से बताया गया है कि फौरी तौर पर इस पर काम शुरू किया जाए। बताया जा रहा है कि 16,500 इससे मुलाजमतें पैदा होंगी, जबकि 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी और इसके साथ जो दीगर जो एग्रीकल्चर और दीगर जो मामलात हैं उसके लिए ये बहुत अहम जो है एक प्रोजेक्ट है, जिस पर जो है फौरी तौर पर इस पर अमली काम शुरू करने के हवाले से हदायत दी गई है। चेयरमैन वाबड़ा ने कहा है कि इसको जो फिजिकल जो इसका वर्क है वो अब जो है वो शुरू करना है और इसके साथ साथ जो मेमंद और जो दीगर जो डैम्स हैं उस पर भी तफसीली जो है बात हुई है। जो हर्डल्स जो आ रही थी ये बताया गया था कि आज का जो इजलास है ये बहुत अरसे बाद हुआ है और इस पर जो वजारत आबी वसाइल और जो वाबड़ा के माबेन जो चीज़ें आ रही थी, जो हर्डल्स आ रही थी, उनको क्लियर किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि दियामिर बादशाह जो है उस पर फौरी तौर पर जो है वो अमली काम जो है वो शुरू किया जाए। इसके साथ जो मेमंद और जो दीगर जो डैम्स हैं उन पर भी तफसील जो है ब्रीफ किया गया है। उसमें बताया गया है कि क्या क्या इसे मेमंद के ठीक है। अवैस कहानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सब्जियों फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लीमू 600 रुपये, खजूर 400 रुपये, सेब 260, अमरूद 200, आम 340 रुपये फी किलो का हो गया। अवाम ने हुकूमत से महंगाई को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक में तो जैसे महंगाई का लॉकडाउन खत्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। सब्जियां फल सब महंगे, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत और इंतजामिया कमरों में बैठकर महंगाई कंट्रोल करने के दावे करने लगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अक्सर शहरों में सब्जियां फल सब महंगे, कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर हो गई हैं। लीमू 600 रुपये, टमाटर 50 रुपये, प्याज 60 रुपये और आलू 70 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि लहसुन और अदरक की कीमत 250 रुपये फी किलो से भी बढ़ गई है। अवाम परेशान, हुकूमत से महंगाई माफिया को लगाम डालने का मुतालबा कर रही है। फलों की कीमत को तो जैसे पर लग गए हैं। खजूर 350 से 400 रुपये, सेब 200 से 260 रुपये, अमरूद 200 और फालसा 240 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि आम भी आम आदमी की पहुंच में नहीं रहा। मुख्तलिफ शहरों में आम 200 से 340 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। फलों की इतनी ज्यादा कीमतों की वजह से अवाम का फ्रूट चाट से दिल उचाट हो गया है। दूसरी जानिब कराची में भी शहरी इंतजामिया महंगाई माफिया के सामने बेबस हो गई। फल फरोशों की रेट लिस्टें तक आवेजा न करवा सकी। फल फरोश अपनी मनमानी कीमतों पर फल फरोख्त करने लगे। कोरोना के बाद मुल्की मईशत पर फूड सिक्योरिटी के खदशात मंडलाने लगे। पंजाब और सिंध को गंदम खरीदारी हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। माहिरीन ने रवां साल आटा बहरान के खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी तरफ सिंध और पंजाब में जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है। कोरोना के बायस फूड सिक्योरिटी का खतरा मुल्की मईशत के सरों पर मंडलाने लगा। पंजाब और सिंध में गंदम खरीदारी हदफ पूरा करना नामुमकिन हो गया। इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करके हदफ पूरा करने की सरतोड़ कोशिशें करने लगी। माहिरीन ने रवां साल आटा बहरान के खतरे की भी घंटी बजा दी। सिंध में हुकूमत की जानिब से कोरोना बहरान के बायस अब तक 14 लाख टन के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 9 लाख टन गंदम की खरीदारी की जा सकी है। दूसरी जानिब सिंध के गोदामों में पुराना स्टॉक और पास्को से खरीदी गई गंदम भी खत्म हो चुकी है। अभी गुज़िश्ता आटा बहरान के असरात खत्म नहीं हुए। सूरत हाल यही रही तो एक बार फिर आटा बहरान पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत को भी गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने में चैलेंज का सामना है, जिससे निमटने के लिए सूबे भर में इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ इन एक्शन है। आरिफ वाला में महकमा खुराक ने कार्रवाई करते हुए 34 टन गंदम बरामद करके कब्जे में ले ली, जबकि नारोवाल से भी गंदम की 9000 बोरियां बरामद कर ली गयी। सीनियर वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान का कहना है कि सूबे भर में गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके नतीजे में 33,000 टन गंदम कब्जे में ली गई है। आज यौम बदर है। सन 2 हिजरी में 17 रमजानुल मुबारक मकाम बदर पर इस्लाम और कुफर के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई, जिसमें कफारे कुरैश के ताकत का घमंड खाक में मिलने के साथ अल्लाह के मुट्ठी भर नाम नेवाओं को वो अब्दी ताकत और रिश्के ज़माना गलबा नसीब हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत के बाद कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का मदीना से 80 किलोमीटर फासले पर वाक़े बदर के मकाम पर हुआ, जहां 1313 बेयारो मददगार मुसलमानों ने कुरैशी मक्का के पूरी तरह से लैस 1000 जंगजुओं का मुकाबला किया और फतेह समेटी।
दस्तूर अरब के मुताबिक जब जंग की इब्तदा हुई तो मशरिकीन में से अतबा बिन रबिया अपने भाई शबिया बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन अतबा के साथ मैदान कारेजार में निकला। मुबारजा तलब करने लगा तो लश्कर इस्लाम में से हजरत अमीर हमजा, हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अतबा, वलीद और शीबा के मुकाबिल हुए और उन्हें जहन्नुम रसीद किया। इस जंग में कुफार के 70 अफराद मारे गए और 70 ही को कैदी बनाया गया। लश्कर इस्लाम से सिर्फ 14 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। ग़ज़वा बदर की एक इम्तियाजी खुसूसियत ये है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका बिलतफसील जिक्र किया है और सूरह अनफाल इसी मौके पर नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने अपने एहसानात बताए और माल गनीमत और खम्स की तकसीम से मुतल्लिक अहकामात नाजिल फरमाए। मौशरती नाइंसाफियों और समाजी स्याहकारियों को अफसानों का रंग देना सिर्फ सादत हसन मंटो को ही आता है। आज 180वीं यौम पैदाइश के मौके पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक्ट्रेस की आंख हो, देवी हो या कब्र में लेटी आमना या फिर मंटो की बांझ औरत, सादत हसन मंटो ने समाज के हर पहलू पर लिखा और हुर्मते कलम का पास भी रखा। कभी उन्होंने अफसाना वो लड़की लिखा तो दुनिया की नाराजगी मोल ली और खोल दो के बाद तो अपने भी नाराज हो गए। लेकिन सादत हसन मंटो टोबा टेक सिंह, ब्लाउज और बाबू गोपीनाथ जैसे शाहकार अफसाने लिखते ही रहे। मंटो मुसलसल अजियत सहते रहे मगर जिंदगी के अजाब में बुड़बड़ाते भी रहे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह राम सिंह ने आखिरी सलूट किया था। मंटो अब भी कब्र में लेटा ये सोच रहा है कि बड़ा लिखारी कौन है। वो अब भी फहश निगारी के इल्जाम में कटहरे में खड़ा है। इसी वजह से मुल्जिम जिंदा हैं और मुद्दई मर गए।